नमस्कार दर्शकों, जूम डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि अभी ये जो हिमे का जो इंसिडेंट को इशू को लेकर जो है आज हम यहाँ सिलापत्थर जो यहाँ पर धोनी पोलो कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है उन लोगों का जो इकोनॉमिक जो ब्लॉक है वो कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है TMP के कुछ मेंबर्स। तो सर से हम जानेंगे। सर सब प्रथमत मैं अपना नाम तो জানিব বিচাৰিছোঁ। মই হেমচন্দ্ৰ দলে TMP কে ষ্টেট লেভেলৰ মেম্বাৰ। সো বিষয়টো এনেকা হ'ল, অকল মানে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঘটনাটো আজিৰে নহয়। অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিবাদ সমস্যাটো বহুদিনীয়া পুৰণি। বহুদিনীয়া এই বিবাদটো হৈছে বহুত চৰ্চিত আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু এই বিষয়টোক মানে লৈ যেতিয়া হিমে গাঁও অঞ্চলত সেইদিনাখন দুৰ্বৃত্তই যি 11জন আমাৰ অসমৰ নিৰীহ লোকক গুলিয়াই মাৰিলে, এইটো কোনো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু খুব মানে গভীৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু আমি এই বিষয়টোক লৈ কিনে আমি গৰিহণা দিছোঁ অৰুণাচলৰ পুলিচ প্ৰশাসনক। কাৰণ যিটো চিভিল আমাৰ চিভিলৰ লগত মানে এইটো আমাৰ নাগৰিকৰ লগত যেতিয়া বিবাদ চলিছিলে, ইহঁতে নিষ্পত্তিৰ কাৰণে অকল অসম আইনী ব্যৱস্থাটোকে ইহঁতে মানে গ্ৰহণ কৰি পেলাই যাতে দুটা পক্ষৰ মাজত অসম অৰুণাচল নাগৰিকৰ লগত যাতে হাই কাজিয়া নহয় সেই ব্যৱস্থাই কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু অৰুণাচল পুলিচ প্ৰশাসনে যে ইয়াৰ অসমৰ নাগৰিকক তাত গুলিয়াইছিলে, এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু আমি গৰিহণা দিছোঁ বিষয়টোক লৈ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো সমস্যাটো আমি অৰুণাচল আৰু অসমৰ সমস্যাটোক আমি এতিয়া খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ। আগতেও এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু এতিয়াও পূৰ্ব অনুমান কৰিছোঁ এইটো ভৱিষ্যতে ঘটিব বুলি এনেকুৱা অনুমান কৰিছোঁ। কিন্তু অৰুণাচলৰ মানুহবিলাকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আজিৰ যুগত মানে চিভিলাইজ যুগ হৈ গ'ল, এতিয়া সভ্যতাৰ যুগ। মানুহবিলাক এতিয়া মানে চিন্তাধাৰাৰ বহুত উচ্চ চিন্তাধাৰা হ'বলগীয়া হ'ল। কাৰণ এতিয়া যে মানুহক মিট দাও লৈ কাটিব লাগে বা বন্দুক লৈ কিনি মাৰিব লাগে এনেকুৱা নহয়। তেনেকুৱাতো বহুত উগ্ৰপন্থী আছে। এইটো ভাৰতৰ এটা অংগৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ এটা অংগৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ হয়। এইটোতো কোনো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বেলেগ এটা ৰাষ্ট্ৰ নহয়। বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ নহয় যেতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰত থকা ৰাজ্যৰ অৰুণাচল অসমৰ বা বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত চবৰ লগত এটা যোগসূত্ৰ আদান প্ৰদান কৰি পেলাই জীয়াই থাকিব লাগে। কিন্তু এতিয়া মানে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নিচিনাকৈ ইয়াত অসমৰ মানুহ অৰুণাচলত আহিলে গুলিয়াব লাগে, মাৰপিট কৰিব লাগে। সেইদিনাখন ILPৰ বিষয়টো লৈ কিনি সেইদিনাখন বিতৰ্ক হৈছে। অৰুণাচলত বসবাস কৰা মানুহবিলাকৰ লগত ইমান টৰ্চাৰ কৰিছে অৰুণাচলৰ মানুহবিলাকে। এই কথাবিলাক কিমান ভাবিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া অৰুণাচলত মানে অসমৰ মানুহে যাব নোৱাৰে, টুৰিষ্ট যাব নোৱাৰে, ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাব নোৱাৰে। তেনেকুৱা এটা হ'লেতো অৰুণাচল প্ৰদেশখন এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নেকি? कभी भी उन्नत नहीं होगा ना ऐसा करने से। वो लोग सोचना चाहिए, भाईचारा में चलना चाहिए। ये तो अरुणाचल सिर्फ स्टेट है और अरुणाचल इंडिया का ये एक अंग राज्य है। वो लोग सोचना चाहिए कि 371 आर्टिकल 23 में वो लोग ये जनजाति का दर्जा मिला है, जनजाति का स्टेट मिला है। वो स्टेट का वजह से जो भी स्टेट हो रहा है वो स्टेट डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। लेकिन वो लोग ILP के लिए और सीमा विवाद के लिए वो झगड़ा करना, गोली मारना, ये सब ठीक नहीं है। ये होगा कि महाभारत रामायण जैसे ये ख़त्म हुआ था, अपना भाईचारा से ये भाई ये करके फाइट करके मर रहा था, ऐसा होगा ये ऐसा करने से। वो लोग सोचना चाहिए कि वो लोग भाई का साथ में झगड़ा नहीं होना है। कुछ तो अगर गड़बड़ होगा, कुछ तो अगर गलती हुआ है तो उधर में हम लोग बैठ के ये साथ में बैठ के हम लोग मीटिंग करके ये लोग सुलझाना का काम था। लेकिन जो हम लोग सुना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का एक तो DSP लेवल का आदमी गोली मारा है बोलता है, 11 आदमी को इंजर्ड हुआ है, वो डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में अभी पड़ा हुआ है। हम लोग इसलिए अरुणाचल सरकार का वो पेमा खांडू ये CM साहब को हम लोग अपील करता हूँ
ऐसा वाला एडमिनिस्ट्रेटिव का आदमी लोग को रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी और इससे भी बड़ा इंसिडेंट हो भी सकता है। अगर ये तो कोई पेस्तूल हुआ है बोल के ही इतना ज़्यादा इंसिडेंट नहीं हुआ है, अगर एयर गन मशीन गन से लेके कोई मार रहा था तो कितना आदमी शहीद होना था। इसलिए हम लोग बोलता है कि अरुणाचल थोड़ा आदमी लोग को भी हम लोग बोल रहे हैं, अरुणाचल का आदमी लोग भी थोड़ा सिविलाइज होना चाहिए। अभी इतना दिन हो गया कि हर जगह का आदमी गुते ये सब वर्ल्ड का आदमी अभी सिविलाइज होके जा रहा है, लेकिन अरुणाचल का आदमी क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, वो उस दिन सुना है कि ये क्या बोल रहा है, नामसाई में भी एक तो आदमी को मारा है। हाँ, उधर मर्डर किया है, और ये पासीघाट में भी मर्डर किया है, गुगामुख में भी मर्डर किया है, एनएसपीसी में मर्डर किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलता है कि अरुणाचल और आसाम का गवर्नमेंट सीएम साहब मिल के ये दोनों जितना यहाँ का ये बाउंड्री डेमार्केशन है ये सबको अच्छा से सुलझाना है, और अच्छा से ये आसाम और अरुणाचल का भाई लोग अच्छा से भाईचारा करके रहना है। जैसे कि सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर मैं किसी लोगों को मैं ये प्रोवोक नहीं कर रहा, जस्ट जो इंसिडेंट है मैं उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा और आपसे मैं सवाल भी करना चाहूँगा। जैसे कि सर, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया है कि वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो है आप लोगों के व्यक्ति के ऊपर जो है कुछ गोलीबारियाँ किए हैं, मारपीट की है। तो हमने तो वहाँ पर जाकर जो है ग्राउंड रियलिटी पर मैंने कल जाकर वहाँ पर रिपोर्ट किया और वहाँ का स्थिति देखा। अभी तक तो काफ़ी शांतिपूर्ण है वहाँ पर। वहाँ के आपके आसाम फोर्स भी वहाँ पर अभी तैनात है, और अरुणाचल के भी जो फोर्स है वहाँ पे वो भी तैनात है, ताकि दोनों स्टेट के बीच जो एक पीसफुल हार्मोनी रहे। इसलिए वहाँ पर जो है सिक्योरिटी रीजन बहुत काफ़ी ठीक ठाक है, टाइट है। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है इस तरह का गोलीबारी मारपीट हुआ ऐसा, या पुलिस ने जो है आपके लोगों को मारा, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने जब पुलिस से पूछा तो उनसे भी मैंने जांच पड़ताल किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जो अपहरण किया था जिस गांव बुरा को, तो ये तो जस्ट ऐसी बात है, जब अपहरण हुआ था उस जो गांव बुरा को जब अपहरण किया था, तो उस गांव बुरा का भी इस तरह से कहना था कि मतलब उन दो लोगों ने जो है उनको जो है वहाँ से जो है घसीट कर लेके गए, और जस्ट उसके साथ और दो जो लोग थे उसके पास बंदूकें भी थे, 2 वेपन्स थे। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सर, ये भी कहना चाह रहा हूँ कि क्या सर आप लोग ये कोशिश नहीं कर रहे कि रियलिटी में सीधे जो जगह में जो है अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर जाके आप लोग GWS और ये जो और बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद आप लोगों के TMPK की तरफ से जो है जाकर, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ राउंड टेबल कुछ ऐसा बातें नहीं हुई कि वहाँ पर जाके ग्राउंड रियलिटी पर जो है जाके आप लोगों को चेक करना है, बातचीत को जानना है? इस विषय को लेकर TMPK के जो प्रेसिडेंट का क्या कहना है, और आप ऐसे संगठन के हिसाब से आप क्या कहेंगे सर? वो बात तो क्या है, वो हम लोग की ग्राउंड लेवल का जितना ऑर्गेनाइजेशन है उस एरिया का, जहाँ का हिमे विलेज का ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का बंदा है, लड़का लोग है। कल हम लोग का स्टेट लेवल का हम लोग का लीडर लोग को बताया कि उधर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो 2 साइड का मतलब अरुणाचल और स्टेट साइड का जो मीटिंग बैठा हुआ था उस समय में वो गुच्छा होके मारा है बोल रहा है। फिर हम लोग ये बात तो हम लोग ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट अच्छा से करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और ये आसाम स्टेट गवर्नमेंट और अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ। हम लोग एक साइड से नहीं देख रहे हैं, दोनों तरफ से हम लोग क्या है रियलिटी उसको देखने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन बात तो वही है, जो भी हुआ गलती होने से आपस में टकराया तो हाथ पैर वो लोग तोड़ दिया, वो मार लिया, वो लाठी डंडा से मारा है, वो दूसरा बात है। लेकिन बंदूक और ये मिड से मारना ये तो इलीगल है ना, गलत बात होता है। ये इंसान को ऐसा मारना, इससे किसी के ऊपर में गुस्सा हुआ किसी का ऊपर का, बाद में उसका बातचीत नहीं मिल रहा है तो उसमें गोली चलाना, उसका बंदूक चलाना, उसका ऊपर में ये मिड चलाना, ये तो ठीक बात नहीं होता है। इसमें होता है सोल्यूशन तो एक बातचीत हो में होता है, थोड़ा बात होने का बाद में थोड़ा भीतर को भी हो सकता है, तो उसका बाद में क्या है असली बात तो निकल जाता है। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं कि उधर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन काल में भी एक हम लोग देखा है सबसे मिसिंग ये हम लोग का कम्युनिटी का आसाम का तरफ से, मतलब मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल का CM उधर में गया था बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। काल उन लोग को भी ये जाने नहीं दिया है बोल रहे हैं, बस्ती में जो पहुंचा है उसका बाद में निकलने नहीं दिया है, फिर बंदूक लेके दाव लेके निकला बोल रहे हैं। उसका कोई एविडेंस है अभी भी?
हम लोग का बंदा लोग, हम लोग का लड़का लोग विदा करके रखा हुआ है, बंदूक हाथ हाथ में लेके घर से बस्ती से निकल रहा है। ये सब क्या बात है? ये तो इंसानियत नहीं होता है ना। और उस दिन जहाँ में इंसिडेंट हुआ था उस समय में 11 आदमी का लोगों को जब मतलब गोली मारा था, उस समय में जो गोली का उधर का निशाना है अभी भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में मिलेगा, हम लोग का एसपी रिपोर्ट में मिलेगा, मेडिकल में ढूंढने से मिलेगा। कोई ये मतलब ये इंसिडेंट तो गलत नहीं है, सही है, सही इंसिडेंट है। इसलिए हम लोग बोलता है दोनों तरफ से क्या है। लेकिन वो अरुणाचल तरफ का जो आदमी है, लोग है, मेरा भाई इशारा का आदमी लोग को हम लोग बोल रहा है, ऐसा बार बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। कोई सीमा विवाद होने से उसको थोड़ा सा आपस में मिला के बातचीत करके वो सुख सुलझा सकता है। लेकिन ऐसे बंदूक और ये हथियार और ये अस्त्रों से कोई ऐसा मतलब ऐसा वाला सिस्टम, ऐसा वाला और झमेला कभी भी सुलझा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग अनुरोध करता हूँ सीएम साहब और अरुणाचल सीएम साहब को, असम सीएम साहब को अनुरोध करता हूँ कि ये अरुणाचल और असम का बाउंड्री के बारे में कंक्रीट सोल्यूशन करके, ये परमानेंट सोल्यूशन करके ये का यहाँ का जितना का ये अरुणाचल और भाई ये असम का भाई बहन है वो लोग अच्छा से मिलजुल के रहना है, यही मेरा ख्वाहिश है। सर ये बात कहाँ तक सच है कि हमें ये बात भी सुनाई दे रहा है कि अरुणाचल के कुछ जो लोग हैं गांव से जो है उनको जो है अपहरण किया है, ये बात कहाँ तक सच है? गांव का लोग तो कहाँ ऑपरेशन किया है, वो तो अपहरण किया मतलब जैसे कि किडनैप करके लेके चला गया। कहाँ से? वहाँ से गांव से ऐसा कहना है, मतलब नहीं, हमें एक रिपोर्ट मिला है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपहरण करने के लिए कोई हम लोग का असम का हथियार नहीं है, ये हम लोग एकदम क्लियर ही बोल रहा हूँ। असम का लोगों का हाथ में कोई वेपन नहीं है और कोई इसका हथियार नहीं है। अरुणाचल में परमिशन देता है, परमिट देता है कि बंदूक लेने के लिए, ये एयरगन लेने के लिए, कोई डाव लेने के लिए परमिशन देता है। असम में ये सब नहीं है। कोई अपहरण करने के लिए, कोई किसको किडनैपिंग करने के लिए इसमें शासक भी नहीं है हम लोग का, यहाँ में कोई हिम्मत भी नहीं होता है असम का आदमी को। सर जैसे कि अभी आप लोगों का जो अभी रोड ब्लॉक आप लोग जो करके रखे हुए हैं सर, तो इस पे जो है काफ़ी लोग यहाँ से जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफें भी हो रही है और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी है कि यहाँ पर किस तरह का गाड़ी जा रहा है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई अपना प्राइवेट वर्क पे जो है यहाँ से इस सड़क को क्रॉस कर रहे हो। तो सर आप इसके बारे में जरा हमें डिटेल में बताएंगे कौन कौन से गाड़ी यहाँ से अप डाउन हो रहे हैं? ये तो तकलीफ तो सहना पड़ेगा, क्योंकि खुश पाने के लिए तो खुश होना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ तो सबको होना पड़ेगा। तो हम लोग पब्लिक को अपील कर रहा है कि हम लोग को कोऑपरेट करो, और जो अभी तकलीफ हो रहा है उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा ये इतना बड़ा एक तो इशू है, ये इशू को हम लोग को कोऑपरेट करने से ठीक है कि तकलीफ भी थोड़ा सहना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल का भी काफ़ी लोग है, अच्छा आदमी है, और कोई भी ये हम लोग को भी अरुणाचल से भी फ़ोन करके बोलता है कि ये जहाँ में बंदूकदारी का वो गोली चल रहा था वो लोग मतलब सपोर्ट नहीं हो रहा है, उन लोग का कोई मतलब ऐसा कोई भी उन लोग का इंटेंशन उधर में नहीं है। हम लोग बोलता है कि वो लोग चलना चाहिए, असम में भी उन लोग को बिज़नेस करके चलता है अरुणाचल का आदमी, अरुणाचल से भी असम का साथ में बिज़नेस करके चलने वाला बहुत आदमी है। इसलिए हम लोग बोलता है कि ये रूट ब्लॉकेज का बारे में हम लोग ये खुद दोनों स्टेट का अच्छाई के लिए ये भी सहना पड़ेगा कि ये तकलीफ को भी थोड़ा सहना पड़ेगा। कब तक रहेगा सर ये रोड? ये जब तक यहाँ का दोनों ये असम और अरुणाचल का सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक ये हम लोग रूट ब्लॉकेज करते रहेगा। सर आखिरी सवाल मेरी ओर से, सर हमें ये सुनने को मिला है, वहाँ के जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट है सबसे पहले घुसपैठ करके की गई है। इस बात पर कितनी सच्चाई है? उनका कहना ये है कि जो असम के लोग हैं, असम के जितने भी जो इंसिडेंट में शामिल हुए थे, उनका वो कहना है कि वो लोग अरुणाचल पर घुसकर उन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए ये जो इंसिडेंट जो है आगे बढ़ा। इस बात पर कितनी सच्चाई है और इस चीज़ को आप किस प्रकार लेते हैं? ये घुसपैठ का बात नहीं होता है। अरुणाचल और असम में कहाँ घुसपैठ होता है? ये हम पहले बोल रहा था आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371H में सिर्फ अरुणाचल को ये ST दरवाज़ा दिया है कि ये अरुणाचल का स्टेट लोग यहाँ में ट्राइबल लोग ये एरिया में जी सकता है बोल के, लेकिन बाउंड्री नहीं दिया है ना। बाउंड्री ठीक करके ये बाउंड्री है बोल के नहीं दिया है ना। ये तो दूसरा नेशनल नहीं है ना, इंडिया से सेपरेट ये राष्ट्र नहीं है। तो एक ही राष्ट्र का अंदर में तो उधर भी जा सकता है, यहाँ में भी जा सकता है, खेती उधर भी कर सकता है।
लेकिन एक तो बात है, उधर का आदमी लोग भी थोड़ा ऐसे करके रह रहा था इतना साल, कितना हो गया 1986 से 1986 से कितना साल हो गया, बहुत ही साल हो गया। अभी तो ऐसे ही भाईचारा करके रह रहा है, एक साथ में वो लोग खाना पीना करते हैं, एक साथ में अलिया लिगांग मनाते हैं, एक साथ में मोपिन करते हैं। लेकिन अभी क्यों हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वो एक ज़रूर कोई उधर में कोई लगाने वाला ही होगा। उन लोग का ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करना है, उसका बाद में उसका ऊपर खरा से खरा एक्शन लेना है दोनों अरुणाचल और आसाम स्टेट का आदमी। सर लास्ट क्वेश्चन है ये, सर ये जो आप लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ये कौन कौन से जगह पर अभी हो रहा है, ताकि पब्लिक को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके? या तो फिर कोई लॉन्ग जर्नी भी करके कोई आ रहे होंगे तो उनको पता नहीं होगा, तो बीच पर आके कोई अगर फंस जाएगा तो पता है, कल सब एरिया में ये सोशल मीडिया में और न्यूज़ में हम लोग का ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेट लेवल का हम लोग ब्रीफिंग दिया है। और सब अरुणाचल और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आजकल सोशल मीडिया का ये ज़माना है, ये हर एरिया में ये ऑल इंडिया में वर्ल्ड में वो भी फेमस हो गया कि कल आज से मतलब ये पिकेटिंग चल रहा है बोल गया। तो ये तो पहले तो हम बोल रहा था, थोड़ा सा ये जितना भी तकलीफ़ है वो तो सहना पड़ेगा। जहाँ भी ये न्याय मिलने के लिए और इसका जस्टिस मिलने के लिए तो हम लोग ये हर आदमी को, हर पब्लिक को, अरुणाचल और आसाम का पब्लिक का कॉर्पोरेशन चाहता है। इस स्टेप के बाद अगर अरुणाचल प्रदेश के ओर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आपका स्टेप आगे किस प्रकार होगा? ये तो आगे क्या होगा, आगे का बात हम लोग नहीं जानता है। लेकिन हम लोग जब तक हम लोग का साथ ये आसाम का जितना 26 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ में शामिल है TMP के साथ में, अभी जितना जब तक मतलब हम लोग का साथ में बैठक नहीं बैठेगा और ये सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक इसका कड़ा एक्शन नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये पिकेटिंग और ये इकोनॉमिक्स रोड ब्लॉकेज हम लोग करते रहेगा। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुना कि अभी TMP के संगठन ने काफ़ी कुछ अभी इस इंसिडेंट को लेकर कह दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और इस इंसिडेंट को लेकर हम, इस खबर को लेकर आपके साथ हम जारी रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं रोशन काको, धन्यवाद।